आमतौर पे कम वोट देते हैं, तो ज्यादा वोटिंग पर मतलब फ्लैट वाले निकले। तो ये डायरेक्ट फायदा है बीजेपी प्लस को, यानी महायुति को। अगर नहीं निकले, 50% से कम रहा, अगर 50% से कम का मतलब कि फ्लैट में रहने वाले प्रवासियों ने या हाईफाई सोसाइटी ने नहीं वोट देने निकले, इसका मतलब कि डायरेक्ट फायदा यूबीटी प्लस को। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो आंकड़े, चूंकि जब तक फाइनल नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कहेंगे, तो अभी सिर्फ अंदाजा है। तो पंकज जी, इस अंदाजे के बीच जो सबसे अहम सवाल रहा पिछले 1.5 साल से, एक बार फिर से महाराष्ट्र में मराठी मानुस और गैर मराठी मानुस का मुद्दा बहुत छाया रहा। क्या यह चुनाव यह भी तय करेगा कि वहां की जनता अब भाषाई लड़ाई में, अब पहचान की लड़ाई में नहीं फंसेगी? अगर एमएनएस और यूबीटी के साथ गए तो यह तय हो जाएगा कि हां, जो लड़ाई 90 में थी भाषा को लेकर, भैया जी को लेकर, यूपी बिहार वालों को लेकर, वही अभी भी चली आ रही है। अगर बीजेपी के साथ गए तो क्या यह तय हो जाए कि भाई अभी इन लड़ाइयों पर आम जनता, आम मुंबई का ध्यान नहीं दे रहा है? अच्छा रोहित, मराठी बनाम गैर मराठी की लड़ाई में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी घटना बताता हूं। शिवसेना की जब स्थापना हुई तो बाला साहब ठाकरे ने स्थापना नहीं की। बसंतराव नाइक थे और उन्होंने सबसे पहले शिवसेना बनाई थी। उस समय शिवसेना बसंत कुछ करके नाम था इसका। उस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई में कॉटन मिल्स हुआ करते थे और उस कॉटन मिल्स के जो मालिक हुआ करते थे वो थे गुजराती, मारवाड़ी, ये सब थे, पारसी लोग थे, ये तीनों। बाला साहब ठाकरे को क्यों पाला गया था आपको पता है? क्योंकि इन पूंजीपतियों ने वहां जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, जो मजदूर वर्ग था, उसको मारने के लिए, दबाने के लिए एक लठैत उन्हें चाहिए था। और लठैत उन्होंने खा किया साहब ठाकरे को। और बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त जो पहला नारा दिया था, बिल्कुल आता हूं पंकज जी। वहां तक नेटवर्क का इशू है, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिएगा। पंकज, एक बार नेटवर्क का इशू है, फिर से कनेक्ट कीजिएगा। भुवन जी, अगर वही मराठी मानुस और गैर मराठी मानुस की बात करूं तो उस पर आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन अभी कुछ बयान है वो सुना देते हैं, फिर आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। We welcome the exit polls, but tomorrow post 12 o'clock, you will realize that history is being made by the Mahayuti based on the sheer developmental agenda of Adarnya Eknathji Shinde and Devendra Fadnavis. There are certain people who choose to work from home. People have rejected that and have only chosen the people who work on ground. And to make Mumbai a Viksit Mumbai and a Viksit Maharashtra, you need to have leaders like Eknathji Shinde that have tirelessly toiled on the vision plan for a Khadde Mukt Mumbai or a Pagdi Mukt Mumbai, to give the Sthanik people, the sons of the soil, their homes back. People who had left Mumbai have come back, whether it's the Girni Kamdar or whether it's Ramabai Nagar, where 17,000 homes have been provided, or BDD Chaul, where the Sthanik citizens have come back. These are core issues that resonate with public, not just theatrics, photo optics, and low comments. It's clear that the Mumbaikar has only welcomed development, and that development agenda Devendra Fadnavis and our own leader Eknathji Shinde took to the public. We never got into negative comments. We never talked about lungi, pungi, rasmalai, and all kinds of adjectives used for opposition leaders. We only reached out to the Mumbaikar on core issues, whether it's a sewage treatment plant, where 7 sewage treatment plants are being used in Mumbai. Here on a Khadde Mukt Mumbai, which is a pothole-free Mumbai, looking at the environment very seriously, 5,000 electric buses, 435 kilometers of metro network that connect Mumbai. I think these are the issues that connect with the core Mumbaikar. People are way beyond caste, creed, culture, and all kinds of delivery that the opposition set. And if they really wanted to work for the Marathi Manos, they would have worked on ground. Whether it's Ramabai Nagar, where 17,000 homes were given, or BDD Chaul, where locals were rehabilitated, or the Girni Kamgars. These are core issues that Eknathji Shinde and the Shiv Sena stands for.
The opposition is so raffled that they don't know what excuses to come up with. And when they talk about ink, let me please tell you, we have all tried to remove this ink. Nothing has happened. Sometimes they blame the EVM. Sometimes they blame election commission. Sometimes they say the power of money and vote notes. This is a standard practice, but maybe they should get a new script writer, because tomorrow post 12 o'clock, all these excuses would have run out. Do understand, it is the electorate and the voter of Mumbai that accepts and gives you the praise that is required for your good work and not for your down market comments. एग्जिट पोल के जो निकाल अभी सबके सामने आ रही है, वो पूरे निकाल अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी वही है कि महायुति की ही सरकार इस मुंबई में। बिल्कुल। और यहां पर कुछ बयान आपने सुने, बीएमसी के नतीजे अब से थोड़ी देर में आएंगे। एक बार ब्रेकिंग चलाइएगा कि किस तरीके से अब से थोड़ी देर में चुनावी नतीजे आने शुरू होंगे। बीएमसी में वोटिंग परसेंट जो 53 से 55% का अनुमान था, अब से थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा कितनी फीसदी वोटिंग हुई थी। काउंटिंग प्रोसेस चेंज होने से बीएमसी चुनाव के नतीजे आने में थोड़ी देरी हो रही है। पहले फेज में 46 वार्ड की मतगणना होनी है। मुंबई में जो बीएमसी इलेक्शन हुआ 15 तारीख को, एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिला था, 151 सीटें दिखाई गई थी और पोल्स ऑफ पोल्स में भी 140 से प्लस सीटें थी। बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों के लिए वोटों की गिनती अब से बहुत थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच 23 मतगणना केंद्रों पर यह मतगणना होगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फाइनल नंबर अब से थोड़ी देर में आएंगे। एनएफ न्यूज पर आप लगातार हर एक अपडेट बीएमसी चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई देख सकते हैं। लगातार यहां पर आप लाइव के माध्यम से और खबरों के माध्यम से बीएमसी चुनाव पर हर एक अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा एनएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnf.com पर भी जाकर आप बीएमसी चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई खबरें पढ़ सकते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और सहयोगी भुवन शर्मा लगातार बने हुए हैं। भुवन जी, सवाल आपसे वहां पर था कि मराठी गैर मराठी मानुस वाली जो बात थी, आपको भी वही लगता है कि अगर नतीजे, जो मैंने सवाल किया था पंकज जी से, अगर नतीजे कुछ उस तरीके से हुए तो मुंबई की जनता तय कर देगी भाई बहुत हुआ? बाला साहब ठाकरे की बात अलग थी, आप बच्चों की बात अलग है, विचारधारा से समझौता करने के बाद हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे कि मैं इसको ऐसे देखता हूं, हिंदुत्व वर्सेस जो मराठी अस्मिता की बात हो रही है, जो हिंदुत्व वाला पर्सपेक्टिव है वो वृहद है, वो बड़ा है और कहीं ना कहीं वो समावेशी भी है अगर आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और मराठी, जहाँ तक मराठी अस्मिता का झंडा लेकर के चलने वाली शिवसेना जब से अलग हुई और 2019 में फिर मैं आपको ले चलूँगा, उसके बाद जो स्थितियाँ बदली हैं रोहित, तो मुझे लगता है कि अगर आप हाल के नगर पालिका के चुनाव उठाकर देख लें, जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ भी उद्धव ठाकरे को मायूसी हाथ लगी है। तो जो महाराष्ट्र की राजनीति को गहरे से समझते हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे ही वो चरित्र है राजनीति में महाराष्ट्र की, मुंबई की, जो इस वक्त सर्वाइवल से जूझ रहे हैं। और ये चुनाव जीतना उनके लिए आने वाले वक्त में उनकी राजनीति की दिशा क्या होगी, कितना वो आगे फाइट कर पाएंगे, उसकी भी तकदीर तय करेगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जो मराठी अस्मिता की बात तो करते थे, लेकिन जो प्रयोग 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने किया कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर, वो जनता को रास नहीं आया और उसके बाद लगातार हरासमान होती हुई नजर आई उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और मुझे लगता है कि अब यहां पर भी जो शहरी चुनाव जिसको माना जाता है, और शिवसेना को शहर से ही आप देखेंगे, अगर अतीत उठाएंगे तो उसका विकास ही शहर से होता है, शहर से ही उसको मजबूती मिलती है, उसके पांव वहीं मजबूत होते हैं। बिल्कुल। तो वहां भी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर बिल्कुल। पंकज जी, अगर यहां पर बात करें संजय राउत की, अगर उनकी बात नहीं होगी तो बीएमसी चुनाव या फिर महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी रह जाएगी। अब संजय राउत का नाम लिया, आपके चेहरे पर हंसी आने लगी। मतलब राज्यसभा सांसद है, मतलब उनका नाम लिया, आप इस तरीके से कैसे हंस सकते हैं? उनके नाम सुनते ही एक अहम भूमिका निभाते हैं शिवसेना यूबीटी का वर्चस्व बनाए रखने में, विपक्षियों को जवाब देने में। संजय राउत के लिए बीएमसी चुनाव क्या कुछ तय करेंगे? एक दुबे जी हैं, शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता। उन्होंने कल एक टेलीविजन चैनल पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि जितना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर वोट नहीं लाते,
हमारे पार्टी के एक नेता है, रोज सुबह सुबह मीडिया में बयान देकर उतना कम कर देते हैं। ये उबाठा के प्रवक्ता है, वो कह रहे थे बीएमसी चुनाव के दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण सामने आया, उद्धव ठाकरे और उनकी गर्लफ्रेंड का। वो मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर है और बाला साहब ठाकरे पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, और उनका और संजय राउत का ऑडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें संजय राउत कभी उनको धमका रहे हैं और कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब मामला ये था कि उद्धव ठाकरे ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम सारी ब्लैक मनी करके रखी थी, और अब वो गर्लफ्रेंड कह रही है कि मेरे नाम पे है, मैं नहीं लौटाऊंगी तुम्हें। ये पत्रा चाल वाला घोटाले का पैसा था, और पूरा ऑडियो वायरल है, और मुंबई में हर कोई मजे लेकर उस ऑडियो को सुन रहा है। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा वो जान ही रहे, उनकी छवि कैसी है, क्या है, वो सब पता है। अगर दूसरी उनके बयान की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया कि हर जगह हमने अपने 5,000 टोटल लड़के तैनात किए हैं, और जो इधर उधर करेगा उसकी पिटाई करेंगे। तो ये सब, खैर, संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त 3 संजय की बड़ी चर्चा है भारत की राजनीति में। एक तेजस्वी यादव के संजय थे, संजय यादव, एक आम आदमी पार्टी के संजय हैं, और एक उद्धव ठाकरे के संजय हैं। हाँ। और तीनों संजय बहुत फेमस हुए हैं। नहीं, एक संजय और हैं, आप भूल रहे हैं, बीजेपी के भी संजय हैं, अमित शाह के भी संजय हैं, संजय मयूख। संजय मयूख नहीं, तो वो तो लो प्रोफाइल रहते हैं, वो बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। कांग्रेस के इन भी संजय तीनों थे, पे काफी नाम था संजय गांधी। तो मतलब राजनीतिक लिहाज से अगर संजय देखें तो हर एक पार्टी में रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि संजय अगर बनना है तो संजय मयूख या संजय गांधी बनो, संजय राउत या संजय यादव मत बनो अपनी पार्टी को ये करने का। ठीक है पंकज जी, आपने जिस तरीके से संजय राउत का एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं की उठी है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर और चर्चा कर लूं। संजय राउत कल कह रहे थे कि वो डी ग्रेड का बीजेपी का नेता अन्नामलाई, जब लुंगी और पुंगी वाले मामले पर विवाद शुरू हुआ, 13 तारीख को भी संजय राउत ये कह रहे थे डी ग्रेड का अन्नामलाई है। आपको संजय राउत और अन्नामलाई की राजनीतिक रूप से या फिर जब वो सामाजिक रूप से काम कर रहे थे, दोनों की तुलना करनी हो तो कैसे तुलना करेंगे, कौन कहां पर खड़ा है? मैं अन्नामलाई को पढ़ रहा था कि वो IIM में जब सिलेक्शन लेते हैं तब भी 99% लेकर आते हैं, 10th में लगभग उनके 86% थे, 12th में उनके 94-95% थे, सिविल सर्विसेज में गए तो उनके पास IAS बनने की प्राथमिकता थी, लेकिन उन्होंने वर्दी चुनी IPS। और फिर ऐसे कि डी ग्रेड के नेता आपको भी लगते हैं क्या अन्नामलाई? आपने खुद ही आधे सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया। राज ठाकरे ग्रेजुएशन फेल, कॉलेज में गए थे पर पास नहीं कर सके। आदित्य ठाकरे की पढ़ाई उनके उनसे ज्यादा चर्चा उनके दूसरे कामों की वजह से होती थी जो कॉलेज में किया था। उन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, जबकि इन लोगों के पास फैसिलिटीज थी। अन्नामलाई एक गरेड़िया परिवार से, हम आमतौर पे कहते हैं ना कि लालू यादव गरेड़िया परिवार से हैं, वो यादव नहीं है, लेकिन अन्नामलाई रियल में गरेड़िया परिवार से है। इनके जो पिताजी और माताजी थे वो भेड़ बकरियां चराते थे, और उस परिस्थिति से निकलकर 94% इनका मैट्रिक में मार्क्स था, 94%। उसके बाद ये IIT में गए, और IIT करने के बाद इन्होंने IIMs किया, और IIMs अहमदाबाद से जो सबसे टॉप का था। उसके बाद IIMs छोड़ के UPSC किया, UPSC में इनका रैंक था 244, और ये चाहते तो IAS बन सकते थे, लेकिन उन्होंने IPS चुना, और IPS चुनकर इन्हें कर्नाटका कैडर मिला। और पहली पोस्टिंग ऐसी थी इनकी कि वहां एक बच्ची का रेप हुआ था, और जब रेप हुआ था तो जाहिर तौर पे लोगों में आक्रोश था। एक महिला आई, उस बच्ची की मां थी, और उन्होंने अन्नामलाई पे कंगन फेंका एक SP के रूप में, और यह कहा कि आज तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम यही काम करते? विदिन 24 आवर्स वो सारे रेपिस्ट पकड़े गए, तमाम पॉलिटिकल दबाव के बावजूद। और इतना ही नहीं, ये तो पुलिस का काम है पकड़ना। अन्नामलाई ने एक ऐप लॉन्च किया उस बच्ची के नाम पर, और वो ऐसा ऐप था कि जहां कहीं किसी बच्ची के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार कर रहा है, छेड़छाड़, टीका टिप्पणी,
तुरंत पुलिस के पास उसका कॉल जाता था और 3 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती थी। मतलब समस्या सिर्फ एक क्राइम सॉल्व नहीं करना है, उस पूरे क्राइम के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से नाश करना। जब इनका ट्रांसफर हो रहा था, वहां से हट रहे दूसरी जगह जा रहे थे, तो सड़कों पे लोग रो रहे थे जी। और अपने पिक करियर पे आईपीएस रहते हुए इन्होंने वीआरएस लिया और अपने राज्य तमिलनाडु की सेवा करने का फैसला किया। ठीक है पंकज जी, उस राज्य में जहां बीजेपी का वोट परसेंटेज 2% था, अब 11 पहुंच गया। ये आते हैं 11 तक ले आया। तो एक का अचीवमेंट और दूसरे का मैं बता रहा हूं कि ये जो उद्धव ठाकरे वगैरह हैं, इनको छोड़ के गए थे 110 सीट पे बाला साहब ठाकरे, और वो डाउन होते होते आज 20 सीट पे आ गए हैं। तो बाकी जनता तय कर लेगी कि कौन सी है, कौन डी है, कौन बी है और हर कौन किसी को पता ए है। बाकी ये जनता पर हम छोड़ते हैं। अन्ना मलाई के पर जो कुछ भी कहा गया, अब अगर उससे आगे